screen. All are visible? Yes, sir. Okay. Now, the classification of acids. Acids can be classified into many categories, but the base of their classifications, that what is the source of acids, means from where acids occurs, presence of oxygen, how much oxygen is present, what is the strength of the acids, what is concentration, and बेसिसिटी, मीन्स कि बेस का फॉर्म कितना है, कितना बेस होगा कि हम एसिड को न्यूट्रल कर सकते हैं. ठीक, तो एसिड्स आर ऑफन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, strength, concentration, and basicity. So see in the figure that classification of acids based on source, natural acid and mineral acids. Then based on concentration, concentrated acids, dilute acids. Based on ionizing capacity, that is strong acid and weak acids. मीन्स हमारे 3 टाइप्स के, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन एंड बेस्ड ऑन आयोनाइजिंग कैपेसिटी, कि कितने जो आयंस हैं वो रिलीज कर सकता है कोई भी एसिड. दैट इज बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन. बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशंस, मीन्स वो कितनी देर में डाइल्यूट होता है, जैसे वाटर में कितना सोल्यूबल है वो. बेस्ड ऑन द सोर्स, मीन्स वो कहाँ से मिल रहा है हमें, कि हम उसको फैक्ट्री में, लैब में तैयार कर रहे हैं उसको, या फिर वो नेचुरली हमें मिल रहा है. ठीक है जी. तो नाउ वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल्स classification based on the source. This means that acid is classified on the basis of their source or origin. There are mainly 2 types, organic acid and mineral acids. तो ऑर्गेनिक जो नेचुरल होता है वो सारा ऑर्गेनिक होता है, कि जिसमें कुछ चीजें हम नहीं मिलाते हैं, और नेचुरली जो भी आता है वो ऑर्गेनिक होता है वो सारा का सारा. तो ऑर्गेनिक एसिड, दिस एसिड obtained from organic materials like plants and animals. For example, citric acid, जो citrus fruits होते हैं, citric acid, acetic acid, vinegar, oleic acid, olive oil. तो ये सब हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है, ये सब का सब, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. तो ऑर्गेनिक एसिड्स obtained from organic materials such as plants and animals. Then second is the mineral acid. It means based on the source. Mineral acids, mineral acid is procured from minerals. मिनरल्स से, इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. एक जो खास प्रॉपर्टी जो होती है, द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल एसिड इज दैट these acids don't contain carbon, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 एक्स्ट्रा. तो ये मिनरल से प्रोक्योर किया जाता है. इनको हम लेबोरेटरी में इनको तैयार कर सकते हैं, कई सब्सटेंस लेकर के उनको मिक्स करके बनाया जाता है. तो दैट इज द मिनरल एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड्स, इट्स द नेचुरल and it's obtained from plants and animals, and mineral acid is procured from minerals. They are known as inorganic acids या mineral acids भी बोलते हैं हमें. Then classified based on the presence of oxygen. Presence of oxygen means, this means that acids are classified on the basis of presence of oxygen. These are 2 types, oxyacids and hydracids. Oxyacids, acids that consist oxygen in their composition, like H2SO4, HNO3. ये जो हाइड्रिक सल्फाइड है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, these are the oxy acids because they consist oxygen in their composition. जब इनको बनाया जाता है, जैसे H2SO4 मीन्स इसमें ऑक्सीजन है, HNO3 यहाँ भी ऑक्सीजन के 3 आयंस हो गए. तो these are known as the oxy acids which contain oxygen. Another one is the hydracid. Hydracid that consists hydrogen.
combined with other elements, but it doesn't consist oxygen in their composition and don't contain any oxygen in their composition. These are known as the hydra acids. Means hydra acids are the acids that don't contain oxygen in their composition, like HCl, HI, HBr. इसमें किसी में भी ऑक्सीजन आयन नहीं है. Okay. Then third category is the weak and classified acids on the basis of their strengths. Acids always produce hydrogen when mixed with H2O, means water. Water के साथ जब उसको acids को आप mix करते हैं, then it produce hydrogen. Strength of an acid depends on its concentration of hydrogen ion present in a solution. Means ये है कि जब किसी भी एसिड को आप H2O वाटर में मिलाते हैं तो उसमें जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो जो हाइड्रोजन आयन, इसके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है, दैट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. कि ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मींस ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मींस दैट द एसिड इज वीक. तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, तो इसकी जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे मेजर करेंगे? एसिड की स्ट्रेंथ हम मेजर करेंगे उसके हाइड्रोजन आयन से. मींस उसके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है. अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है इट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयन लेस है इट मींस इट इज द वीक एसिड्स. तो स्ट्रॉन्ग एसिड, an acid which can be dissociated completely or almost completely in water is known as a strong acid. जैसे नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है. ये क्या होता है, इनको जब आप वाटर में डाल दोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा. तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन एक साइड में निकल जाते हैं और प्योर एकदम से मिल जाए. जैसे नमक है, नमक को अगर आप उसमें सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो HCl है, वो अगर आप मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के आयंस ज्यादा रिलीज करेंगे, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे इसमें H प्लस H2O, तो कितना हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, ये H3O मीन्स हाइड्रोजन 3 हो गया. इसमें HCl, H प्लस SO4, H2SO4, 2HSO4. तो इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं. जहां हाइड्रोजन आयन आपके कम रिलीज होंगे वो वीक एसिड होगा. लाइक एसिड विच डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली और डिसोसिएट नेग्लिजिबली इन वाटर इज नोन एज ए वीक एसिड which we usually consume on daily basis. Citric acid, acetic acid. Now another classification is we can classify acid on the basis of concentration. Concentration क्या होता है? Concentration always depends on the number of hydrogen ion that it produced in water. ज्यादा हाइड्रोजन मींस ज्यादा हाइड्रोजन आयंस अगर वो प्रोड्यूस करता है इट मींस वो हाईली कंसंट्रेटेड है, अदरवाइज वो डाइल्यूटेड एसिड है. तो कंसंट्रेटेड एसिड, व्हेन एन aqueous solution has a relatively high percentage of acid dissolved in it, then it is a concentrated acid. Hydrochloric acid, concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid. Dilute acid, when an aqueous solution has a relatively low percentage of acid dissolved in it. मीन्स कोई भी सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन है, चाहे आप वाटर ले लो, लाइम वाटर ले लो, कुछ भी, उसमें अगर आप कोई भी एसिड डालते हैं तो वो अगर लो परसेंटेज में डिसॉल्व होता है देन इट इज द डाइल्यूटेड एसिड. अगर हाईली कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है मीन्स हाई परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व होती है, थोड़ा सा बचता है, जैसे कि पानी में हम नींबू डालते हैं, ठीक है, तो पानी का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है ना, वो हाईली कंसंट्रेटेड. अदरवाइज डाइल्यूटेड में लो परसेंटेज ऑफ एसिड डिसॉल्व इन इट, बहुत ज्यादा रह जाता है उसमें.
The another classification based on basicity of the acids. Acid on dissociation in water produce hydrogen ion, as all you know. Number of these hydrogen ions that can be replaced in an acid is the basicity of an acid. Monobasic acid, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड, ये तीन तरह के जो एसिड है उनको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस, उनका बेस कितना है एसिड में. तो मोनोबेसिक एसिड इज एन एसिड विच हैज ओनली वन हाइड्रोजन आयन, ओनली वन हाइड्रोजन आयन, जैसे HCl हो गया, HCOH, HBr एक्सेट्रा. These combine with one hydroxyl group of the base to form salt and water. Dibasic acid, in which these shares two hydroxyl groups, it is known as dibasic acids. So these dibasic acid dissociate in two steps. They can provide two kinds of salt, normal salt और hydrogen salt. जैसे H2SO4 है, H plus HSO4, 2NaOH plus H2SO4, Na2SO4, 2H2O. तो ये टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बनाते हैं, मींस दोनों में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए जाते हैं. ट्राइबेसिक मींस these which can combine with three hydroxyl groups. They have three replaceable hydrogen ions and they produce three types of salts as 3PO, hydrogen 3. तो इसमें नेक्स्ट में आप देखें कि NaOH, H3PO4, NaH2PO4, H2O, तो थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बनाते हैं. तो हमने इसमें ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एक बार थोड़ा सा अभी एक नए न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए मैं एक मिनट में इसको कंप्लीटली रिवाइज करवा देता हूँ, और जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी ये रिवाइज हो जाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सोर्स, presence of oxygen, concentration and basicity. There are two types of the acids. सोर्स के बेस पे कि जो एसिड्स है उनको कहाँ से लिया गया है, वो नेचुरली है या उनको वो मैन मेड है, हमें बनाए हुए हैं. तो एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. मिनरल एसिड होता है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनरल्स, दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स. उनको लेबोरेटरी में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकंड, द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स आर इन द बेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट मीन्स ये है कि वो जो एसिड्स हैं वो अपने कंपोजिशन में ऑक्सीजन कितना कंटेन करते हैं. तो ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रासिड. ऑक्सी एसिड्स में ये होता है कि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है उसके कंपोजिशन में, जैसे H2SO4, HNO3. बट हाइड्रा एसिड्स में कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, डोंट कंटेन एनी ऑक्सीजन. एंड देन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ मीन्स ये होता है कि कोई भी जो एसिड्स होता है वो जब किसी में मिक्स किया जाता है तो वो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम करेगा उतना ही वीक एसिड होगा. देन द कंसंट्रेशन मीन्स जब कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन, कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन, वाटर या लाइम वाटर ऐसे ले लो कि एक्वियस सॉल्यूशन में एसिड जब हाई परसेंटेज में डिजोल्व हो जाता है देन इट इज द हाईली कंसंट्रेटेड, एंड लो परसेंटेज में डिजोल्व होता है देन इट इज द डाइल्यूटेड एसिड. फिर उसकी एसिड में बेसिसिटी ऑफ द एसिड में कितना बेस है वो उसकी फॉर्म पे भी क्लासिफाई किया गया है इसको, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन एन एसिड इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. मोनोबेसिक means only one hydrogen ion, acid which has only one hydrogen ion. Dibasic which has two hydroxyl groups, and tribasic acid which has three hydroxyl groups. So later I will send these notes to you also.
And our next topic will be, because time is not over yet, and next we will discuss about bases. We have studied about bases in the previous chapter. So can you tell me, anybody of you, that what is the basis? Anybody, please. Mayank. Hello. Bases are bitter in taste. Okay, good. और उससे ज्यादा? गुड, वेरी गुड. सभी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बोलते रहो, सही या गलत बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. Bases change the color of red litmus to blue litmus. Okay, this is written in front of you in the shared screen. Okay. Bases are those substances which have bitter taste. एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? Sour. Sour. Good, very good. Bases are those substances which have bitter taste. They turn litmus to blue. कल हमने इंडिकेटर्स में आपको बताया था. They turn red litmus to blue. Those bases which are soluble in water or are called alkali. एल्कलाई बोलते हैं, जो वाटर में पूरा का पूरा सोल्यूबल है उनको एल्कलाई बोलते हैं. तो जैसे NaOH, KOH, MgOH2, NH4OH, these are the some examples of the bases. So basis is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ion in solution. क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? हाइड्रोक्साइड आयन when dissolved in water. और एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? When the solution of a base is diluted by mixing water to it, then concentration of hydrogen ions decreases. Now classification of bases. हमने जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ा था, सेम लेवल पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस आज स्टडी करेंगे. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ. इट मींस extent of ionization. Bases are classified into strong bases and weak bases. ठीक, कितने आयंस प्रोड्यूस करते हैं? ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, कम हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस कब डिक्रीज होती है? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर टू इट. स्ट्रॉन्ग बेसिस. स्ट्रेंथ मींस स्ट्रॉन्ग और वीक. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं. Bases which undergoes complete ionization in aqueous solution are called as strong bases. Or the bases which undergoes partial ionization in aqueous solution are called weak bases. Means जैसे completely जिसमें ऑक्सीजन, NaOH, KOH, और weak acids, weak bases, NH4OH, NH3, etc. And these can be classified based on acidity. Can be classified into different types. जैसे जो एसिड्स ड्राइव किए, एसिड्स को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिड्स, ऑन बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी. इसी तरह से बेसिस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर एसिडिटी. मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस. इसी तरह से एसिड भी हमने क्लासिफाई किए थे, मोनो, डाई एंड ट्राई.
तो mono means bases which produce only one hydroxide ion in aqueous solution. One hydroxide ion, just NaOH हो गया, KOH, then that is known as a monoacidic basis. Diacidic bases which produce two hydroxide ions in aqueous solutions are called diacidic bases. Triacidic bases which produce three hydroxide ions in aqueous solution is triacidic bases. जैसे OH3, ALOH3, FeOH3. And next one is, तो ये हमने क्लासिफाई किया गया है इसको बेसिस ऑन स्ट्रेंथ, बेसिस ऑन एसिडिटी. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस and acidity basis, monoacidic, diacidic, triacidic. Now we will see some properties. We will study about some properties of bases. Yesterday I have told you also that bases are bitter in taste, soapy to touch. Bitter in taste, soapy to touch. Bases are good conductors of electricity in aqueous solution. Good conductors of electricity means कि इसमें electricity जल्दी पास हो जाती है, करंट बहुत जल्दी आ जाता है. In aqueous solution they release ions which conduct electricity. Bases liberates heat on dilution. ये जब dilute होता है, किसी mix होता है तो वो heat produce करते हैं bases. These are the properties of bases, that is physical properties of bases. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार फिर से बता देता हूँ. दीज आर बिटर इन टेस्ट, व्हेन इट टस्ट इट इज द सोपी इन नेचर. बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेस सॉल्यूशन. वैसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, एक्वेस सॉल्यूशन में अगर आप इसको किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो दे रिलीज आयंस. मतलब वैसे नहीं है गुड कंडक्टर्स, बट दीज आर गुड कंडक्टर्स इन एक्वेस सॉल्यूशन. बेसिस लिबरेट्स हीट ऑन डाइल्यूशन. Then indicator in presence of basis. Basis का ये प्रॉपर्टी है कि basis turns red litmus to blue. Phenolphthalein turns pink in presence of basis. Basis की presence में phenolphthalein है वो pink turn हो जाता है, और methyl orange turns to yellow in presence of basis. Then the chemical properties. Above is the physical properties. So can anybody tell me that what are the physical chemical equation? दो तरह का होता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है. रिएक्शन जो होते हैं, तो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है? Can anybody tell me? फिजिकल चेंज का कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप मुझे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था? Like water becomes ice and ice again becomes water. This is irreversible. Chemical properties. Reaction with active metal. Bases react with metals to liberate hydrogen gas. जब ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, लाइक जिंक, NaOH प्लस जिंक, इसके साथ करेगा तो ये हाइड्रोजन और सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस करेगा. इट मींस बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लिबरेट करता है. एक्टिव मेटल एंड reaction with non-metal oxides. Bases react with non-metallic oxides to form salt and water. जब ये किसी नॉन मेटेलिक मीन्स हो गया, जैसे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो मेटल्स नहीं है, तो ये नॉन मेटेलिक
ऑक्साइड्स के साथ जब वो, और ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के आयन होते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन के आयन होते हैं, दैट इज द ऑक्साइड्स। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, bases when reacts with active metals liberate hydrogen gas, but when it reacts with non-metallic oxides it liberates salt and water. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, दोज आर एसिडिक इन नेचर. Non-metallic oxides are acidic in nature, but when it reacts with bases, then that forms salt and water. Reaction with acids, bases reacts with acids to form salt and water. जैसे अभी ऊपर हमने नॉन मेटेलिक के साथ देखा था कि वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से जब ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा. जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH plus HCl hydrochloride reacts, when it reacts then potassium chloride plus H2O. And now the uses of bases, where bases का यूज कहाँ हो सकता है. सबसे पहला जो बेसिस का यूज होता है, दैट इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टोमक. जब हमारे स्टोमक में जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो एसिड ज़्यादा बन जाता है. तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं. द एंटासिड इज द बेस. तो दिस base can be used to neutralize the acidity, but it must be the mild. Strong नहीं होना चाहिए. Okay, तो mild bases neutralize the acidity in the stomach. Sodium hydroxide is used in manufacture of soaps, paper, synthetic fibers like rayon. सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं. वो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और उसको हम यूज कर सकते हैं सोप्स बनाने में, पेपर बनाने में, और कई जो सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह उनको बनाने में हम यूज कर सकते हैं. Then the calcium hydroxide is used in manufacture of bleaching powder. Magnesium hydroxide is used as an antacid. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड में कौन सा यूज होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपोजिशन यूज होगा उसमें. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स. जैसे अमोनियम फॉस्फेट है या अमोनियम सल्फेट है, इनके लिए यूज किया जाता है. तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं छोटा छोटा बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. व्हेन बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर, बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड द एल्कलाई. अदरवाइज सारे जो बेसिस है वो एल्कलाई नहीं है, बट व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर. बेस इज ए सब्सटेंस which dissolve in water to produce hydroxide ion in solution. क्लासिफिकेशन है बेसिस की. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन कितनी है. बेस्ड ऑन एसिडिटी, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस. बेस्ड ऑन एसिडिटी, मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक एंड ट्राई एसिडिक. मोनो एसिडिक, only one hydroxide ion in aqueous solution. It produced 2 hydroxide ions in aqueous solutions is produced, then it is the diacidic acid. If 3 hydroxide ions in aqueous solutions are produced, then it is the triacidic basis. And some physical properties, these are bitter in taste, soapy to touch,
good conductors of electricity in aqueous solution, and it liberates heat on dilution. Then indicators in presence of bases. Bases turns red litmus to blue. Phenolphthalein turns pink in presence of bases. Methyl orange turns to yellow in presence of bases. Then chemical properties. When it reacts with active metals, it produces hydrogen gas. When it reacts with non-metallic oxides, it produces salt and water. It produces salt and water when it's react with non-metal oxides. And when it reacts with acids, it forms salts and water. And where can we use bases? It can use to neutralize the acid in our stomach when our food is not digested. It is used in manufacturing of soaps, that is sodium hydroxide, manufacturing of bleaching powder, that is the calcium hydroxide. Magnesium hydroxide is used as an antacid. Antacid is used to neutralize the acid in stomach. And ammonium hydroxide is used to prepare fertilizers like ammonium phosphate and ammonium sulfate. Now it is 1.5 minutes, and over to Mr. Neeraj Kumar is there. Please, sir. Okay, so next class will be at 12. So you can take rest 20 minutes, then let's join math, and we will do the exercise, remaining exercise. And all students are requested, please send your contact number and email ID. Yesterday only one student has sent its email ID so that we can send you study material. Yeah, and keep this package, right? It will be very helpful for you at the end of your year, right? When you will appear in the board exam, okay? Or in any competition.